So student, my screen is available to you. It may be visible. It large. You can maximize the window of presentation. You can see easily. So yesterday we started our unit number 5, that is friction, and we have very short of time to complete your syllabus. So this is your last but one unit, and then you have the unit number uh, unit number 5, and then last unit number 6. Only 2 units will remain. So this is fifth unit we have started. That is unit is about the friction and what is the friction. Friction is nothing but the objectives, learning objective and outcome. Already yesterday we have seen, and the video lecture I have uploaded on your Google Classroom. You can watch the video lecture. And then why the friction is necessary? You can see from these figures that we can run our car or we can walk because of the force of friction is there. If the force of friction is not there, then we cannot able to walk, we cannot drive a bicycle or any other thing. And it is the surface to surface contact. Friction is the surface to surface contact. So here you can see the tire, the surface of tire in contact with the air. So we are applying the force, rotational force to the tire. Tire is rotating, but due to friction in the surface, that's where we are moving forward. फ्रिक्शन होने की वजह से हम आगे बढ़ते हैं. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारी व्हील वहीं रोटेट होगी. The surface is frictionless, then sir, the wheel will be rotate at its own place और हम आगे नहीं बढ़ेंगे. So that's why friction is very important. So this is the relevance of your subject. Also the prerequisite of the studying the friction. What is the friction? So for study friction, you know the laws of mathematics, laws of trigonometry, that is sine theta, cos theta, and tan theta, etc. How to find out, that is lot of trigonometry, Pythagoras theorem. Then resolutions of forces. Already we are studied in the unit number 3. Unit number 3, you are studied this resolution of forces and conditions of equilibrium. Unit number 4, you have seen, that is summation of horizontal forces Fx is equal to 0, summation of Fy, this vertical process, is equal to 0, and summation of M moment is equal to 0. All the moment is equal to 0 about any point. So that is nothing but the conditions of equilibrium. We are already learned all these things in unit number unit number 4. Unit number 4. Okay. So what is the prerequisite and the course benefit of the subject? So subject applied mechanics जो आप लोग पढ़ रहे हैं. So we are studying in the second semester of your civil engineering branch of uh, or mechanical engineering branch of your diploma course. Okay. In third semester, civil engineers they will study the mechanics of the structure, and in mechanical they will learn the strength of material. So both will be, is if you learn the friction, this then this will helpful for the use. Okay. Then geotechnical engineering we will learn in the fourth sem of your. There also this subject is useful, and theory of motion in case of mechanical engineering. You can see. Okay. So and also in fifth semester of civil engineering is precast and precast concrete and elements of machine in fifth semester of the mechanical engineer, and then advanced steel and RCC design in sixth semester of the diploma civil engineering. So all these subjects are related with this unit number 5 of your subject in second semester, that is applied
mechanics, that is A and E you are studying now. Okay, then friction is nothing but uh, it is a resistance offered by a contact surface of one body to other body in motion or on the verge of sliding. What is the friction? Friction resistance offered by the contact surface of one body to other body is in motion or on the verge of sliding. तो आप देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। अगर हम हाथ पर अगर मलते हैं तो अगर हम आगे की तरफ करते हैं तो एक मोशन है, अगर प्रेस करते हैं तो इट विल अपोजेस द मोशन और यस इस सरफेस कॉन्टैक्ट। सिमिलरली हमने एग्जांपल देखा बाइसिकल की, कि बाइसिकल आपकी आप उसको फोर्स लगा रहे हैं पैडल के ज़रिए, आप फोर्स लगा रहे हैं पैडल के ज़रिए, तो आपकी बाइसिकल जो है वो रन हो रही है ना। पैडल इज अटैच विद द व्हील, बैक व्हील, एंड यू अप्लाइंग द पैडल and then the wheel is rotating and it is contact with the surface that is earth or ground. So that your bicycle will be moving the upward. Similarly, आप रगड़ पैदा करते हैं आपकी जो माचिस की तीली जलाने के लिए, तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से होता है रगड़, है ना। इसी तरह कील आप डालते हैं, कील ठोकते हैं आप दीवार के ऊपर, तो दीवार रेजिस्ट करता है, that is the frictional force. Here also in the wheel they are attached with each other, they are also each other applying the friction force. When we are walking on the floor, if there is no friction then we will fall, है ना। if there is friction, the friction, then we can walk easily, and that is nothing but the frictional force. And the frictional force is always uh, is opposite to our motion. So resistance offered by a contact surface of one body, resistance offered by the contact surface of one body to the another body. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर हम अगर हमारी साइकिल्स जो हमारा व्हील पे रन होता है या मोटरसाइकिल जो व्हील पर रन होता है, तो आप देखते हैं कि ये हमारा ये सरफेस ऑफ दिस व्हील, surface of wheel in contact with the ground, है ना। surface of wheel in contact with the ground. That's why we can say that there is two surfaces. How many surfaces are there? Two surfaces you can see. पहला तो आपके व्हील का सरफेस है और दूसरा जो आप ग्राउंड जहाँ पर आपका व्हील है ना। तो ये जो व्हील है ये मूव हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज F is there, frictional force is there. That's why it is called as the contact surface of ground and this. That's why the friction is there, and our vehicle or our cycle or our ball or wheels moving upward. If there is no friction force, what happen? It will rotate at one place, है ना। तो अगर हम एग्जांपल देखते हैं, वीडियो एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए कि फ्रिक्शन है ना, ये बॉल देखिए मूव हो रहा है, आपको दिख रहा है, और बॉल मूव होते होते देखिए रुक गया। क्यों रुक गया? उसको हम लोगों ने फोर्स दिया बॉल को, तो बॉल को फोर्स देने की वजह से वो मूव हुआ, लेकिन कुछ डिस्टेंस चलने के बाद बॉल क्या हो गया? वो रुक गया। बॉल क्या हो गया? रुक गया। क्यों रुक गया? है ना। अब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक बार फोर्स हमने अप्लाई किया और उसके बाद वो मूव हुआ, थोड़ी देर जाकर वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि बॉल मूव हो रहा था एक सरफेस, बॉल का एक सरफेस है और जो सरफेस पे मूव हो रहा था वो ग्राउंड है, और ये दोनों के बीच में कोई फोर्स हमको बाहर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सरफेस का कांटेक्ट है दोनों से।
सरफेस का कांटेक्ट होने से तो ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है, इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, बॉल रुक गया, है ना। इसी तरह अगर आप देखेंगे स्केटिंग कर रहे हैं या फिर आप बॉटल आप अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसकी वजह से आपकी बॉटल जो है वो फॉल नहीं होती है, इट विल नॉट फॉल। ओके, so the force of friction you can see always the opposite to the motion, you can see the force of friction, बॉल मूव हो रहा है एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है और उसके अपोज में फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए वो हॉल्ट में आ गया। इसी तरह आप आइस स्केटिंग कर रहे हैं तो आप जिस तरफ मूव हो रहे हैं उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स है और डिपेंडिंग ऑन द फ्रिक्शन फोर्स योर मोशन इज देयर। इसी तरह आप बॉटल को होल्ड किए कि आपका तो आपके हाथ से नहीं छूटता क्योंकि हाथ और बॉटल के सरफेस के बीच में आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, इसलिए वो नहीं होता। इसी तरह अगर वेट सरफेस है तो वहाँ पर आप गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेट सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, दैट्स व्हाई वी आर फॉल। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स है, वो किससे पैदा होता है? आपके सरफेसेस से, है ना। तो आप so always you can see that the frictional force is opposite to motion, opposite to motion. Okay, so all is nothing but the, okay, so this is the friction. इसी तरह तो यहाँ पर क्यूब रखा हुआ है टेबल पर, अगर हम उसको पुश करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखिए कि फ्रिक्शन फोर्स फैक्टर कौन सा अफेक्ट कर रहा है, एक्चुअली में सरफेस ऑफ बोथ surface of the block and surface of the table, both surfaces are in contact and these are the surface factors, only they will affect the frictional force, है ना। देखिए 3 सिचुएशन यहाँ दी जा रही है, बॉल स्मूथ सरफेस पे स्मूथ सरफेस से मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट का सरफेस स्मूथ है लेकिन सरफेस जिस पे मूव हो रहा है वो रफ सरफेस है, surface of object is rough is moving the smooth surface, the surface of object and the surface he is moving both are the rough. So definitely the force of friction will be highest in the case of where the objects and surface both are rough, है ना। दोनों रफ रहेगा जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा और दोनों स्मूथ रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन है लेकिन कम है, यहाँ पर 3 में ज्यादा फ्रिक्शन है, क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस रफ है। तो कौन सा क्या 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 अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? दिस इज द नेचर ऑफ बोथ सरफेस is nothing but affecting the friction because these two surfaces, surface of the object and surface of ground, yeah. आप ये घर पर ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। इंक्लाइन आप एक प्लेन रखिए टेबल पर और रिंग आप उसको रोल कीजिए, वो आगे कुछ दूर जाकर स्टॉप हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब सैंड पेपर रखिए नीचे, फिर वापस से आप उसको रोल कीजिए तो कुछ डिस्टेंस जाएगा जो कि पहले से कम रहेगा,
फिर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रफ सरफेस है ना, टेबल के सरफेस से ज़्यादा रफ है, इसलिए ये पहले ही स्टॉप हो गया। तो रफ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज बोर्न। तो रेगुलेटरी होने की वजह से आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो सरफेस इरेगुलरिटी की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आता है, और उसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है। रफ सरफेस है तो इरेगुलरिटीज ज़्यादा होता है, जितना इरेगुलरिटी रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। So these are the factors. Nature of surface is affecting the. तो पहला फैक्टर जो हम लोग ने देखा कौन सा है, नेचर ऑफ सर्फेसेस, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द मोशन, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यू कैन से। इसी तरह वेट ऑफ द बॉडी अगर आप देखेंगे तो वो भी अफेक्ट करता है। तो लाइटर ब्रिक आप यहाँ देखेंगे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है हेवियर की वजह से। दैट फ्रिक्शन इज आल्सो डिपेंड टू सरफेस आर प्रेस टुगेदर, यानी वेट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ प्रेस हार्ड करेगा 5 kg वाला, जबकि 2 kg वाला कम प्रेस करेगा। तो दैट इज ड्यू टू द वेट, the greater force is there, and that's why it will press harder. That's why the interlocking are more irregularities, and that will affect more friction. तो हमने देखा यहाँ पर कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बोथ surfaces and for with the user. So this is nothing but you can see that the nature of the surfaces and the weight of the body, these also affect the frictional forces. These are the factors. What are the advantage you are walking on the road? It is possible only because of friction force. You are moving the vehicle or stop by applying the brakes. This is also by the frictional force. Okay, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं हमारा मोशन हम कम कर देते हैं, और थोड़ी स्लाइडिंग होने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है या हमारी कार है या हमारा बाइसिकल है या मोटरसाइकिल है वो रुक जाता है ना। इसी तरह आप हैमर नेल इनटू द वॉल, वहाँ कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो नेल हमारा अंदर जाता है, अगर रेजिस्टेंस जाता है तो नेल हमारा अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह होल्डिंग पेन एंड राइटिंग, दैट इज आल्सो ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। इस तरह ये एडवांटेजेस है फ्रिक्शन के जो हम यूज करते हैं। What is the disadvantage of friction? Disadvantages of friction: loss of energy, wear and tear between the parts. क्योंकि एक सरफेस दूसरे सरफेस से कांटेक्ट होता है, इसलिए आप देखते हैं कि जब हम हमारी पहिया जब रोड पर चलता है, अगर रफ रोड है तो वो जल्दी खराब होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि साल में 2 साल में हम हमारे गाड़ियों के पहिए या टायर चेंज करते हैं। क्यों टायर चेंज करते हैं? कि वियर और टीयर दोनों सरफेस के कांटेक्ट की वजह से जो होता है, तो उससे टायर हमारे घस जाते हैं, उनकी थिकनेस कम हो जाती है। तो दैट्स व्हाई वी आर चेंज द टायर। मोर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, जितना रफ सरफेस रहेगा उतनी हमको दिक्कत होगी मोशन के लिए, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना। इसी तरह आप देखते हैं कि हमारा अगर स्लोप इंक्लाइन स्लोप है, लोअर साइड है, तो हमारी बॉडी फास्ट मूव होती है ना, फास्ट मूव होती है। और इसी तरह अगर बॉडी का मोशन और हमारा इंक्लाइन स्लोप अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर लो मोशन हमारा हो जाता है ना। हमारा लो मूव जो होता है, लो मूव होता है, यानी स्पीड हमारी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज ऑफ दिस मोर फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू द इंक्लिनेशन। ओके, so it is also depend, and reduction in the efficiency will, you can say, these are nothing but disadvantage of the frictions.
Now, what is the friction based on the motion? So here there are two types of friction. The first one is the static friction and another one the dynamic friction. तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और फिर हम इंक्लिनेशन दे रहे हैं और वो मूव होगा, तो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. एक ऑब्जेक्ट जो है अगर इक्विलिब्रियम में है, वो मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट है, वो एक ग्राउंड पर, इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में, यानी इसके ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं. तो इसको इक्विलिब्रियम में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन और इक्विलिब्रियम में है. इज दिस पर्सन डिस्टर्बिंग द क्लास? Ajay Pawar. Yes, sir. I will remove you. Switch off your, mute yourself. Okay. Then the friction based on surface condition. Friction based on dry friction and wet friction. So based on the surface condition, surface अगर dry है और surface अगर wet है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में या हम मॉल में जाते हैं या फिर हम कोई सुपर मार्केट में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर वेट सरफेस है तो वहाँ साइन बोर्ड लगा होता है, सरफेस इज वेट, और फिर वहाँ पर बी केयरफुल लिखा हुआ होता है साइन. क्यों? अगर वेट सरफेस है तो फ्रिक्शन आपका कम हो जाता है, उसकी वजह से आप ये स्लाइडिंग होने के या गिरने के, स्लिप होने के चांसेस होते हैं. ड्राई फ्रिक्शन और वेट फ्रिक्शन, इसलिए हम लोग बेस्ड ऑन द सरफेस कंडीशन वी कैन क्लासीफाई. नाउ व्हाट इज द थ्योरी ऑफ द फ्रिक्शन? तो थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक ब्लॉक में लेता हूँ, है ना, एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक अगर एक है तो इट इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस, है ना, ये सरफेस पर आपका ब्लॉक रेस्ट है. दिस इज योर ब्लॉक, है ना. तो ब्लॉक का एक सेल्फ, खुद का सेल्फ वेट भी होता है, दैट इज यू आर डिनोटिंग विद डब्ल्यू. और मैं उसको पुल कर रहा हूँ तो मैं फोर्स पी लगा रहा हूँ, लेकिन उसके अपोज में हमारा जो है फ्रिक्शनल फोर्स होगा, दैट इज अपोजेस द मोशन. तो इसके अपोज में हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, और नॉर्मल रिएक्शन वेट की वजह से होगा, उसको हम डिनोट करते हैं रिएक्शन को आर से. तो इस तरह आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आप देखेंगे कि ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है. ओके. तो जनरली ये आपको माइंड में रखना है कि ऑलवेज द फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन, है ना. अब यहाँ पर आप देखिए कि द सरफेस म्यू, यहाँ पर म्यू है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू आर. तो जनरली एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. और म्यू क्या बोलते हैं, म्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं इसको, म्यू को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी इट इज डिपेंड ऑन द सरफेस. तो सरफेस अगर रफ ज़्यादा है तो आपकी म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इट डिपेंड ऑन द म्यू. तो द फ्रिक्शनल फोर्स, तो इट इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स. एफ इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. तो डेफिनेटली फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, तो पी के अपोजिट में ये रहेगा, एंड दैट इज एफ इज नथिंग बट म्यू इनटू आर, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. स्टैटिक फ्रिक्शनल और डायनेमिक फ्रिक्शन अगर समझेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शनल यानी अगर आपका ये लिखिए, आपका जो 4p है ये इक्वल टू एफ रहेगा, यानी p इज इक्वल टू एम यू, देन इट इज द वैल्यू ऑफ p, the load applied, if it is less than, here you can see if the p value, yani load applied is less than the value of friction force, then the body is in rest condition. तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जब p और फ्रिक्शनल फोर्स F ये लीनियर रहेंगे एक पोजीशन तक, तो यहाँ तक बॉडी आपकी मूव नहीं होगी. लेकिन जब p इज इक्वल टू
पी एफ इज इक्वल टू, जब भी मूवी आप जब भी बॉडी आपकी मूव नहीं होगी, क्योंकि पी इज इक्वल टू एफ है, यानी लोड जो अप्लाई कर रहा है इट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी ये बैलेंस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसलिए मूव नहीं हो रही। लेकिन अगर आपका फोर्स, आपका जो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं दैट इज पी, पी इज ग्रेटर देन एफ, यानी फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है, तो फिर आपकी वो बॉडी क्या होगी, वो अपनी जगह चेंज करेगी और वो मूव होगी जो डायरेक्शन में आप खींचेंगे, तो ये चेंज करेगी डायरेक्शन। तो ये, तो इसको डायनामिक हम बोल सकते हैं। तो बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन, कब वो बॉडी मोशन में आएगी, जब आपका जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो पी, इट विल बी लार्जर देन द एफ वैल्यू, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो दैट इज नथिंग बट थ्योरी ऑफ द फ्रिक्शन। तो रेस्ट कंडीशन में कब रहेगी, कब तक रहेगी, जब तक पी इज इक्वल टू एफ रहेगा तब तक वो रेस्ट कंडीशन में। जैसी पी की वैल्यू, यानी जो लोड आप अप्लाई कर रहे हैं वो बढ़ जाएगी, तो आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी, मूव होने लगेगी। ये क्या है, हमारी theory of friction। तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, है ना। तो पी आपका मोशन दे रहा है, उसके अपोजिट में एफ है, एंड डब्ल्यू के अपोजिट में आर, ये रिएक्शन है। तो दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द मोशन। समझ में आया। तो ये थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन है हमारी, ये क्या है, ये हमारी थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो लोड आप अप्लाई करते हैं या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझ में आया। दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन। So generally, this is the theory of friction. What is the friction? Your mu, mu मैंने पहले ही बताया आपको, mu is nothing but coefficient friction। तो हम जनरली डिनोट करते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, है ना। अगर म्यू हमको मालूम करना है तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाय R, that is the normal reaction. Okay, so mu is equal, this is the constant, mu is the constant coefficient of friction between surface of contact, between surface of contact. So it is found that limiting friction F is directly proportional to the normal reaction. So generally limiting friction जो है, जो F है, तो limiting friction F is directly proportional to the normal reaction. So limiting friction is limiting friction is F is directly proportional to R. Okay. Now you can see here the FBD, the free body is limiting equilibrium। तो आप देखेंगे कि ब्लॉक का वेट आपका, जब मैं ऊपर जो फिगर बनाई आप देखिए, वेट ऑफ ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये आप देख रहे हैं वेट ऑफ ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज डब्ल्यू। वेट नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड, तो नॉर्मल lying towards the right, the frictional force will always opposes the motion, it will be towards the left। तो अगर हम यहाँ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर अप्लाई करते हैं, तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू पी, है ना। समेशन ऑफ एफ वाई अगर हम अप्लाई करते हैं, आर इज डब्ल्यू,
summation of m is equal to 0 if there is moment is there, but here only one point of the force is acting, then it will not required. And we know that the coefficient of friction mu is the ratio of limiting friction F to the normal reaction R at the surface of contact. F is equal to proportional to the R. So F is equal to certain constant, and that constant is mu into R. Mu is equal to nothing but F upon R. The coefficient of friction it is a ratio of limiting friction, and its limiting friction F is the limiting friction to the ratio of normal reaction at the surface of contact. At the surface of contact. Okay. So this is nothing but your friction, and friction always opposes the motion. Now we'll see the laws of friction one by one. I will read and you can understand. I will explain. The frictional force always acts tangential to the plane of contact and in the direction opposite to the impending motion. तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज जो है वो टेंजेंशियल होता है, टेंजेंट टू द सरफेस होता है ना, टेंजेंशियल टू द प्लेन ऑफ कांटेक्ट, जहां भी कांटेक्ट होगा बॉल और ये ग्राउंड के कांटेक्ट यहाँ होगा तो इट विल बी टेंजेंट टू द सरफेस, and it is always opposite to the motion. Force of friction is self-adjusting force and it increases as the applied force increases up to limiting friction. तो जैसे आपका P की वैल्यू बढ़ेगी, P will increase, then F also increase. Frictional force भी बढ़ेगा जैसे कि आपका force or load applied बढ़ेगा. When body is in limiting equilibrium, the limiting friction bears a constant ratio to the normal reaction, and this ratio is called as coefficient of reaction. जहाँ पर limiting friction है, तो mu is equal to F upon वैल्यू ऊपर देखा. These all are the laws of friction. उसके बाद देखते हैं the coefficient of friction depend only upon the nature of surface in contact and independent of the surface area of contact. So generally, the limiting the friction is always depend on the nature of surface. It always depend on the nature of surface. कैसा surface आपका. इसी तरह the static friction is more than the dynamic friction. Static friction is more than dynamic friction. Always static friction will be the more in the dynamic friction. क्योंकि बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी मोशन में नहीं है, इसलिए आप देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शंस आर ऑलवेज मोर देन डायनेमिक. अगर डायनेमिक फ्रिक्शन ज़्यादा है तो आपकी बॉडी मोशन में रहेगी, अगर डायनेमिक फ्रिक्शन आपकी ज़्यादा है तो बॉडी विल बी इन मोशन. दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इज मोर देन, and when the body at rest is more than the dynamic. Now we'll see the angle of friction. What is the angle of friction? इसके लिए आपको आपकी नोटबुक को ये फिगर बनाना है. सब लोग अपने अपनी नोटबुक ओपन करें और ये फिगर बनाएं. पहले तो एक ऑब्जेक्ट है, आई विल ड्रॉ ऑब्जेक्ट एज ए रेक्टेंगुलर. हम ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, ओके, और ये ऑब्जेक्ट पर
वेट है W, जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं P, और ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन जो है ये R है सरफेस की कॉन्टैक्ट की वजह से, और ऑब्जेक्ट का जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है इट अपोजेस द मोशन, तो ये P के अपोजिट में रहेगा, दिस इज F, और हमको मालूम है F इज इक्वल टू न्यू एंड R। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? तो हियर अगर आप यहाँ पर ये देखिए फिगर में आप ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो S है, S due to this S, angle of made by the resultant of frictional force S and normal reaction R। तो S ये आपका क्या है? S है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? S क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो एंगल मेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स S and the normal reaction R, this angle is called as phi, and that is phi is nothing but angle of friction. So what is the angle of friction? Angle of friction is nothing but the angle made by the frictional force and the normal reaction. So you know that S is nothing but is equal to under root of F square plus R square. That is the resultant of the frictional force. And if you write down the tan of phi is equal to, the tan of phi मैं यहाँ पर लिखूँ, so it is nothing but your F opposite upon adjacent F upon R. So that phi is equal to F upon R. तो अगर phi मुझको एंगल ऑफ फ्रिक्शन मानूँ तो phi is equal to क्या हो जाएगा? tan इधर आ जाएगा, tan इधर आए तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट F upon R is nothing but एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इससे हमको मालूम पड़ता है, और यू कैन इजीली फाइंड आउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड S is the resultant force. What is the S? Sir, S is the resultant force of friction. Resultant force of friction. So friction resultant of force of friction. And angle of friction is phi. Now we will see that what is the angle of repose. अभी हम लोगों ने समझा एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझा, अब नाउ वी कैन अंडरस्टैंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए tan ऑफ phi इज नथिंग बट f ऑफ एन r, है ना, और f ऑफ r इज नथिंग बट म्यू, that is tan phi is equal to, it is nothing but tan phi is also, it is nothing but W, the coefficient of friction. Okay. Here also you can see the angle of repose. What is the angle of repose? The angle of repose is defined as the angle made by the inclined plane with the horizontal plane at which the body placed on the inclined plane is just on the point of moving down of the plane under action of its own weight. तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? अभी देखिए हम जनरली बॉडी हॉरिजॉन्टल इसमें होती है ना। अब हम इसको ये बॉडी को थोड़ा थोड़ा लिफ्ट करेंगे, जहां पर ये बॉडी मूव होकर नीचे आ जाएगी अंडर इट्स वेट, और ये जो एंगल बनेगा इज अल्फा। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं?
एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। यानी ऐसा इंक्लाइन अगर हम सरफेस करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो आपका जो ब्लॉक है ये पहले यहाँ था, लेकिन इसके सेल्फ वेट से वो मूव होने लगा, तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज angle of repose, and angle of repose is denoted by alpha. So it is the angle made by the inclined plane with horizontal plane. So this one is your inclined plane, है ना, inclined plane। ये एंगल बनाए किससे? हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो ये कौन सी प्लेन है आपकी? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो इंक्लिनेशन बनता है कि जो ऑब्जेक्ट है ऑटोमेटिक अपने सेल्फ वेट से मूव होने लगे, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज क्या है? अल्फा इज द एंगल ऑफ रिपोज। यानी एंगल ऐसा एंगल के जो अब हमारा ब्लॉक एड्रेस्ड है और इंक्लिनेशन सर्टेन इंक्लिनेशन देने से वो खुद ब खुद नीचे की तरफ मूव होने लगे, मूविंग डाउन इन द प्लेन, तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। और वो भी जो मोशन है अंडर इट्स सेल्फ वेट, उसके सेल्फ वेट की वजह से मोशन है। ओके, तो अगर हम इंक्लाइंड प्लेन पर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको किस तरह हम इंक्लाइंड प्लेन अगर आपकी है, और देखिए यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन आपकी, ये इंक्लाइंड प्लेन showing with the green you can say this is your inclined plane। So then this inclined plane और इंक्लाइंड प्लेन पर जो ऑब्जेक्ट है। अब आप देखिए कि इंक्लाइंड प्लेन पर जो ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, ये खुद मूव होने लगा है, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा? एक होगा। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट मीन्स दैट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और सेल्फ वेट तो वैसे ही रहेगा, लेकिन सेल्फ वेट का दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो डब्ल्यू, दिस विल एंगल अल्फा, तो ये डब्ल्यू कॉस अल्फा हो जाएगा, और पैरेलल टू द प्लेन विल बी द डब्ल्यू साइन अल्फा, एंड इट इज ऑलवेज अपोजिट द फोर्स। ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो एफ ऑलवेज इट विल बी अपोजिट टू द मोशन। So opposite of motion, that is f is equal to mu r, that is coefficient of friction into the normal direction. So this is the yes. So here if you see that mu is equal to f upon r। f क्या है हमारा यहाँ पर? f is nothing but opposite to this, that is w sin of alpha। R क्या? नॉर्मल रिएक्शन इज अपोजिट टू W cos of alpha, है ना। What will be the value? Sin alpha। So you know that tan alpha is equal to sin alpha upon cos alpha, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा mu is equal to W tan of alpha। ओके, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? ये W भी कैंसल, ओनली tan alpha will be। तो alpha is equal to tan inverse of mu। Alpha is equal to tan inverse of, so hence mu is equal to, hence mu is equal to tan of phi, mu is equal to tan of alpha। समझ में आ गया? तो एंगल ऑफ रिपोज आपका दिया हुआ है, या एंगल मेड बाय द नॉर्मल
with the resultant force phi, so that is material. Mu is equal to tan phi and tan alpha. समझ में आया? तो ये था हमारा inclined plane पे अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स है तो हाउ वी कैन now in uh, tomorrow class we will see the block on horizontal plane surface parallel to the plane. We will stop today here and uh, you can join another lecture, and I will request all of you to join the lecture on time and regularly. If you are not interested in anything, you can ask with me, and we will overcome your doubt. Okay? और बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको. आपका अभी बहुत कुछ बाकी है, तो हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना बाकी है. अगर फिजिकली हमको परमिशन मिलता है लेक्चर में आने का कॉलेज में, तो वी शुड डू वी स्टार्ट द फिजिकल क्लास so that you better understand. Okay? So we will stop here. If you are in doubt, you can ask with me. हेलो फहद। क्या बोल रहे ए दो दो बजे दो का बजे उधर कॉलेज में आना है ना? हाँ हाँ कौन हाँ कौन फहद आने काय वाला की है? मीटिंग है। क्या काय की मीटिंग है दोपहर को? पता नहीं यार काय की मीटिंग है, जाना पड़ेगा। आ रहा तू? हेलो, कुछ लाना नहीं है ना हाँ वहाँ आ से? रहा हूँ। हेलो, क्या नहीं कुछ नहीं कुछ लाना नहीं है ना कॉलेज में? नहीं नहीं, एक ही सवाल बार बार पूछता चला। अबे बस कर, तू भी पूछता ना, तुझसे भी लेकिन गलती कॉलेज होती क्यों कभी. बुला रहे अबे बस कर. नहीं कॉलेज क्यों बुला रहे यार कॉलेज वाले? होगा कुछ मीटिंग के बारे में, मीटिंग कुछ मीटिंग है बोले. मीटिंग है कंपलसरी आने को, का प्रिंसिपल होगा उधर. कॉलेज खुलने वाला है क्या? हाँ. अच्छा यार कोई न्यूज जाए नहीं तो अच्छा पढ़ता है। तू? नहीं ना अभी मैं देखा नहीं। व्हाट्सएप पे ज्यादा देखता हूँ। व्हाट्सएप पे, इसलिए तू आगे मैं पीछे हूँ. चल ठीक है दोपहर में क्या है ज्ञान देखते हैं ना। हाँ ठीक है, 2 नया बजे मिलते टेंशन हैं. लेंगे। हाँ ठीक.